Hello and welcome to this numerical series session. As we all know, we are left with only one chapter, that is the last chapter, space mission, right? So without wasting any time, I will be solving with you and for you the last three unsolved numericals of Science 1, okay, which are from space mission. अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, एक है एस्केप वेलोसिटी का, दूसरा है क्रिटिकल वेलोसिटी। दोनों फॉर्मूले पहले बता देता हूँ ना। सो अगर मैं क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करूं तो VC is under root GM upon R plus H. Maybe I'll write it a little small. So the formula for critical velocity VC is under root GM upon R plus H. अगर H हाइट पे ऑर्बिट घूम रहा है तो, and escape velocity का formula is under root 2GM upon R, right? So these are the two equations or two formulae rather, which are going to be used in numerical solving for this chapter. And if we are okay with this, we can seriously go ahead and start solving. Okay. So look at the very first question now. The question says that mass of planet is 8 times the mass of Earth. So it is given here clearly that mass of planet is 8 times mass of Earth and radius is twice the radius of Earth. So radius of planet is 2 times the radius of Earth. So what will be escape velocity? हमको पूछा है velocity escape of planet will be how much? ठीक है, that's the scenario. अब generally escape velocity of Earth क्या है? Under root 2GM upon R, और इसका वैल्यू आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट का ढूंढ रहा हूँ, सो वहां पे आएगा 2G मास ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। यहाँ पे दोनों अर्थ की वैल्यूज थी, तो अगर मैं रीसब्स्टिट्यूट करने जाऊं तो 2G तो ऐसे ही रहेगा, मास ऑफ प्लैनेट की जगह आई कैन राइट डाउन 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ प्लैनेट की जगह आई कैन राइट डाउन 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया मान लो, तो अंदर बचा 8 टाइम्स GM अपॉन RE, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 2GMR। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने? बिकॉज रूट 4 अगर बाहर आ जाए तो बनेगा 2 टाइम्स अंडर रूट 2GMERE। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो पार्ट है रूट 2GMERE, इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, कितनी वैल्यू है इसकी? 11.2। मतलब अगर मैं वेलोसिटी एस्केप ऑफ प्लैनेट देख रहा हूँ, सो इट इज 2 टाइम्स 11.2 which is 22.4 kilometers per second. So that is the final answer for the first question. That was a very easy question, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। I will move forward to the second question. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं बट थोड़ा सा ट्रिकी है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? It is given that height is 35780 kilometers above the Earth's surface, and if the mass of planet would be 4 times mass of original mass, so mass of the planet or Earth whatever is 4 times mass of the Earth original mass. So उस केस में they are asking कितना टाइम लगेगा for it to go around, how much time a satellite in orbit would take. Okay, time of revolution हमसे पूछ रहे, टाइम इज बीन लास्ट, ऐसा सिचुएशन यहाँ पे है। ठीक है ना, हमको पता है व्हाट इज टाइम, circumference of the orbit upon critical velocity. And what is critical velocity? GM R plus H. So अगर मुझसे टाइम पूछा गया है, would say it is 2 pi R plus H upon under root GM R plus H. ठीक है, now
If I re-substitute this equation or readjust this equation, आएगा t is equal to 2 pi r plus h रूट जी एम यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे r plus h जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा along with the root. ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो. लुक एट दिस इक्वेशन प्रॉपर. ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि टाइम जो है वो रूट ऑफ मास को प्रोपोर्शनल है. तो उसको हमने 4 टाइम्स कर दिया तो टाइम क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स हो जाएगा. तो जो फाइनल टाइम है वो हाफ फैक्टर से कम होगा. ठीक है, बट इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस फर्दर, अगर आप मास को m ही रख के सॉल्व करते हो तो आपको वैल्यूज पुटअप करने हैं. 2 पाई वही रहेगा, r प्लस h अंडर रूट r प्लस h अंडर रूट g बाय m. इसको अगर आप सॉल्व करने जाते हो तो आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि आपको क्या क्या वैल्यूज पुट करनी है. सो जस्ट टू गिव यू अ रिमाइंडर, g की वैल्यू है 6.67 10 raised to minus 11. मास ऑफ अर्थ होता है 6 into 10 raised to 24 kg. रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर्स. इन सारे वैल्यूज को पुटअप करके आंसर आता है 24 आवर्स. कितना आता है, 24 आवर्स. लेकिन अपना जो फाइनल टाइम है कितने से फैक्टर होने वाला है, हाफ से फैक्टर होने वाला है. सो टी फाइनल इज एक्चुअली हाफ t, which is half into 24, it is 12 hours. फाइनल टाइम कितना हो जाएगा, 12 hours हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन. ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लेकिन आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. Now this question says height of satellite completing one direction of this t is actually. तो अभी यहाँ पे मान लो अर्थ सरफेस है और वहां से अगर h1 हाइट पे कोई ऑर्बिटिंग कर रहा है सैटेलाइट, राइट, तो उसमें टाइम कितना लग रहा है, t टाइम लग रहा है. अब उन्होंने बोला ये है कि मान लो, इमेजिन करो एक दूसरा सिचुएशन है जहां पे जो टाइम है वो कितना लग रहा है, 2√2 टाइम्स टी लग रहा है. टाइम कितना लग रहा है, 2√2 टाइम्स टी. तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना होगा ऐसा पूछा है. They have asked us to find out कि ये डिस्टेंस कितना होगा. ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन. क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है नहीं, एक्चुअली इट्स इजी. ठीक है, फॉर एग्जांपल if you see what is time, so 2 pi r by critical velocity. And what is critical velocity, under root gm r plus h. तो फर्स्ट केस में, इस केस में लेट अस कॉल दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस. अगर आप फर्स्ट केस की बात करो तो वहां पे इधर टी आएगा, इधर 2 पाई ब्रैकेट में r प्लस h1 आएगा और यहाँ पे अंडर रूट gm r प्लस h1 आएगा. जो मॉडिफाई हो कैसे बनेगा, 2 पाई r प्लस h1 रूट r प्लस h1 अपॉन रूट g m. ठीक है, सेकेंड सिचुएशन क्या है, सेकेंड सिचुएशन है, लेट अस से इसको हम लोग x बोलते हैं. लेट ये पूरे डिस्टेंस को, इस पूरे ऑर्बिट के डिस्टेंस को हम x बोलते हैं. ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ से जो ऑर्बिट है. सो क्योंकि ये भी r है ना, तब जाके r प्लस h1. सो यहाँ पे है 2√2 टाइम्स t, फिर यहाँ पे आएगा 2 पाई लेट अस से x अपॉन रूट gm बाय x. सो ये हो गया 2√2 t 2 पाई x रूट x अपॉन gm का रूट.
अभी इसको आप इक्वेशन 2 बोल लो चाहिए तो, और इसको इक्वेशन 1 बोल लो. ओके, एंड यू डिवाइड 2 by 1. अगर आप ऐसे करते हो तो LHS में आने वाला है 2√2t/t, जिसमें टी चला जाएगा, सिर्फ 2√2t बचेगा. और यहाँ पे आने वाला है 2 pi x√x upon root gm upon 2 pi r plus h1 root r plus h1 upon root gm. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए we need some space here, तो मैं इस डायग्राम को यहाँ से हटाता हूँ. और LHS में क्या बचा? LHS से बचा 2√2, इतना ही बचा. RHS में वो क्या होने वाला है? It will become 2 pi x√x upon root gm into root gm 2 pi r plus h1 root r plus h1. ये दोनों कैंसिल, 2 pi भी कैंसिल. क्या बचा? 2√2 is x√x upon r plus h1 root r plus h1. Not is 2√2, it is 2 raised to 3/2. What is x√x? It is x raised to 3/2. What is r plus h1? R plus h1 raised to 3/2. अब इनको मैंने दोनों तरफ 2/3 अगर कर दिया तो सारे इंडेक्सेस चले जाएंगे, 1 बचेगा. सो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचेगा r plus h1. अभी इस तरफ जाएगा तो x क्या बन जाएगा? वो बनेगा ट्वाइस r plus h1. तो x क्या बना? x बना 2r plus 2h1. लेकिन ये x क्या है? अगर ये अर्थ है और ये आपका ऑर्बिट है, तो ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है. आई रिपीट, अगर ये अर्थ है और ये आपका ऑर्बिट है, तो सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस है क्या? 2r plus 2h1. हमको क्या चाहिए? हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस. मतलब इसमें से जो r है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो माइनस r अगर मैंने किया, so what I'll get is r plus 2h1. That is your final answer. That's a very tricky question, so please go through it very sincere. And we have finished all the numericals that are required. Wish you all the best.